आज हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आज हम इसका करेंगे डिस्कस पार्ट 1। सो वी हैव डिस्कस्ड बोहर्स मॉडल। हमने बोहर्स मॉडल डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, electron revolves around the nucleus in fixed circular paths. That means definite paths. यानी electron definite path follow करता है when it revolves around the nucleus. So in the light of the Heisenberg's principle and the dual nature of dual nature of matter concept given by Louis de Broglie, this Bohr's model becomes unacceptable. Why? अब इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है इसका? ये क्यों अनएक्सेप्टेबल बनता है? क्योंकि हम डेफिनेट पाथ उसी वक्त किसी कोई चीज उसी वक्त डेफिनेट पाथ फॉलो कर सकता है जब हम उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन एट ए टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं एग्जैक्टली। बट इलेक्ट्रॉन के केस में ये पॉसिबल नहीं है इन द लाइट ऑफ द हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, बिकॉज हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल contradicts this. यानी it is not possible to determine exactly and simultaneously the position as well as the velocity of the moving electron in an atom. So एक और बात बोहर्स मॉडल में, बोहर्स मॉडल सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल करता था कंसिडर, it did not take the wave nature of electron into consideration. In a wave nature of electron, in a dual nature of matter, ये कंसिडर नहीं करता था बोहर्स मॉडल। हमारे पास एक साइंस का ब्रांच था दैट वाज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं classical mechanics. This branch of science is based on the Newton's laws of motion and बिल्कुल ये सक्सेसफुली ये एक्सप्लेन कर सकता है मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, इन लार्ज बॉडीज, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज such as falling stones or this motion of planets, etc. But it failed to explain the motion of the microscopic bodies such as moving electron, because it does not take into consideration Heisenberg's uncertainty principle and dual nature of matter. अब एक नया ब्रांच साइंस का आ गया, उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। दिस ब्रांच ऑफ साइंस टेक्स इनटू अकाउंट बोथ हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। एंड दिस ब्रांच, दिस क्वांटम मैकेनिक्स, इट वाज डेवलप्ड बाय इरविन श्रोडिंगर in 1926. This Erwin Schrödinger actually developed this quantum mechanics. इसने ये डेवलप कर दिए ये quantum mechanics श्रोडिंगर ने, Erwin Schrödinger in 19. This is based on this जो ये quantum mechanics, it is based on the wave motion associated with the particles, associated with the moving particles, with the particles such as an electron. For the wave motion of electron, electron की wave motion को describe करने के लिए in 3 dimensions around the nucleus, इस इरविन श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन पुट फॉरवर्ड किया, एक इक्वेशन दे दी है। That equation is known as Schrodinger's wave equation बोलते हैं इसको, Schrodinger's wave equation। Actually this equation in short हम कह सकते हैं, this equation describes the wave motion of electron in 3 dimensions, along x, along y and along z around the nucleus,
So we can write the equation. This is d square psi divided by dx square. ये d ये partial derivative है ये, प्लस यानी कर्व d थोड़ा d square psi divided by dz square plus d square psi divided by dy square यहाँ पर, फिर dz square प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v divided by h square is psi is equal to 0. So this is Schrodinger's equation. It determines the wave motion of the electron in 3 dimensions around the nucleus in an atom. So यहाँ पर psi actually यहाँ पर है, इनका significance क्या है psi का यहाँ पर? Psi is actually amplitude, ये amplitude of the electron wave, ये electron wave का amplitude है. So what is x, y and z? x, y and z यहाँ पर है coordinates of electron, ये coordinates है electron के. उसके बाद यहाँ पर m है, this is mass of electron, ये mass of electron है. उसके बाद यहाँ पर E है, दिस इज टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन. V यहाँ पर है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. यानी इक्वेशन में जो ये पैरामीटर्स यूज हो गए, V इज पोटेंशियल एनर्जी. एक और चीज है यहाँ पर H, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट. उसके बाद यहाँ पर है d स्क्वायर divided by dx square, d square divided by dy square, d square divided by dz square. These are second derivatives with respect to x, y and z. ये second derivatives है. So this is Schrodinger's wave equation. अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सिस्टम. अगर इसको सॉल्व करेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सिस्टम, वी गेट वैल्यूज ऑफ E एंड psi. हमें E और psi के वैल्यूज मिलते हैं. E हो गए एनर्जी, यानी हमें वी गेट क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी. क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी which the electron in an atom have. So हर एक एनर्जी का एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ psi मिलेगा हमें. हर एनर्जी वैल्यू के, हर क्वांटाइज्ड एनर्जी वैल्यू के साथ एक वैल्यू हमें मिलेगा psi का भी. So इसका मतलब है we will get energy values and psi के values. The values of psi which are corresponding to quantized energy values, these are called wave functions. उनको हम बोलते हैं wave functions. So in short में हम बोल सकते हैं यहाँ पर, यानी when we solve this Schrodinger's equation for a particular system, we get values of E and psi. So हर energy value के corresponding हमें मिलेगा psi का value. These values of psi are called, उनको हम बोलते हैं wave functions. psi के values को बोलते हैं wave functions. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट में हम लिख सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को H psi is equal to E psi. कभी हम ऐसे भी लिखते हैं इसको, किसी किताब में ऐसे भी लिखा होगा. So here this is energy, आपको पता है, this अभी हमने बोला ये psi amplitude इलेक्ट्रॉन वेव है. What is this H? H operator, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है. This is called Hamiltonian. ये Hamiltonian ऑपरेटर है. Hamiltonian ऑपरेटर. It is equal to, ये बराबर होता है h minus h square 8 pi square m plus v. ये इसके बराबर होता है, Hamiltonian ऑपरेटर है. Actually it is energy operator. It is actually equal to the sum of kinetic plus potential energy. ये होता है sum of kinetic energy plus potential energy. Energy operator है. ऐसे ही लिख सकते हैं H इसके बराबर, ये ऑपरेटर है. सो व्हाट इज ऑपरेटर? यहां पर पहले हम देखेंगे ऑपरेटर किसको हम बोलते हैं. ऑपरेटर, सो ऑपरेटर ये हैमिल्टन ऑपरेटर है. ऑपरेटर होता है एक, ये मैथमेटिकल कमांड होती है, मैथमेटिकल कमांड.
An operator is a mathematical command given to a function to get a new function. For example, अगर मैं ऐसे लेता हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर में लूंगा, आई विल गेट एक्स. हियर जो स्क्वायर रूट है, दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये मैथमेटिकल कमांड है which I gave to this x square, जो मैंने इसको x square दिया to get the new function x, उससे मुझे एक नया फंक्शन मिला, x मिला मुझे. So this is operator. इसको हम सिंबल, इसका हम ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल है इस ऑपरेटर का, ऑपरेटर. अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, ऐसे लिखता हूं मैं r, ऐसे दिस r, उसके ऊपर ये सिंबल है, इट मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए फंक्शन. सो दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेटर. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं r, इसका ये सिंबल ऊपर एक्स स्क्वायर, ऐसे में लिखता हूं एक्स स्क्वायर गिव्स एक्स. सो सिंपली हम बोल सकते हैं. इसी तरह ये हैमिल्टोनियन है, ये एनर्जी ऑपरेटर है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये. सो ऑपरेटर क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ मैथमेटिकल कमांड गिवन टू अ फंक्शन टू गेट अ न्यू फंक्शन. ऐसे इसका सिंबल वगैरह है, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हो. ऑपरेटर्स मैथमेटिक्स में एक टॉपिक भी है. सो ऐसे हम लिखते हैं एच साई गिव्स ई साई. अब ये हैमिल्टोनियन हम लिखते हैं ऐसे, हैमिल्टोनियन ऐसे लिखते हैं हम, माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर एम प्लस बी. अब यहाँ पर एक और बात थी, यहाँ पर ऐसे हम लिखते हैं ये एच स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक मैं भूल गया था, ये डेल स्क्वायर है, माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस बी. अब ये डेल स्क्वायर जो है ना, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय dy स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय dz स्क्वायर. इसको हम बोलते हैं लैप्लाशियन ऑपरेटर. लैप्लाशियन, ये लैप्लाशियन ऑपरेटर है. सो दिस वाज अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पार्ट 1. इसका इंशाल्लाह हम पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस. सो यहाँ पर हम शॉर्ट में याद रखेंगे, यहाँ पर एक्चुअली दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन Schrodinger's wave equation. What is Schrodinger's wave equation? It actually describes the wave motion of electron. When we solve this Schrodinger's equation for a particular system, for an electron in a particular system, we get values of E, that is energy, and values of psi. Okay, thanks.